Hello dear champions, my name is Naveen Kumar and you are watching Science Crack classes. So we are discussing about logarithm and we have completed three parts of logarithm. In the part first we discussed about its real life applications. In the second part we discussed about its properties and third part we solved many questions on the behalf of its properties. So what is in the part 4? So in the part 4 we are discussing about more questions and the level of the questions will be a step higher than the previous class. Yes or no? Okay. So we are going to start now. So first of all, if you are new on this channel, subscribe this one and share with your friends. Okay. So come with me now. Listen. In the first question that we have 1 upon log x base 2 plus 1 upon log x base 3 plus 1 upon log x base 4 plus and so on plus 1 upon log 2019 base x. So the very first thing is that we don't have the same base in all the terms. So the very first step is we have to make the base same in all the terms. And how can we make the base same in all the terms? So we have to use a base change property formula. And the formula is that if we have log b base a, so it can be written in the form of 1 upon its domain will be changed into base. Its domain will be changed into base 1 upon log b and its base will be changed into domain. So the same property that we have to apply on this question also, that the domain is x and its base is 2. And why we are applying this property on this one? That we want to make its base same. Yes or no? Listen. Now it will be log 2 base x. Yes or no? And we are writing on the behalf of this property that reciprocal that we have in the form of log 1 upon log x base 2. So it can be written that its domain change into base and its base change into domain. So here that we can clearly see that its domain is base now and its base is domain now. Yes or no? We have to apply the same property on the all the terms. So plus the same property on the other term, that log 3 base x plus log 4 base x plus and so on. And the last term of this question is that log 2019 base x. Say yes or no? Yes. And we have discussed about a property of logarithm, that log ax plus log y plus log z. So we can write it log, its base will be same, x into y into z. Yes or no? If we have 3 terms, then all terms will be in multiply. If we have more than 3 terms, then all terms will be in the multiply. Yes or no? Okay. So we have to apply this same property on this one. So we can write log 2 into 3 into 4 into and so on into 2019. So you are thinking that why I leave this space. So I want to write here 1. And you all know that if we multiply any other number by 1, then the answer will be same. अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर पहले आ रहा था, the same answer will you get now. So I am writing here 1 and its base is x. Say yes or no? And we can clearly see that the following term is the factorial of the 2019. किसका factorial है ये? 2019. And factorial of 2019 can be written in the form of 2019 factorial, or we can say factorial of 2019. Both is right now. Right. Say yes or no? And what we have given, so we can write what we have given, the value of x is factorial 2019. So the same value we are taking on this place, factorial 2019. And in our earlier class we discussed that log a base a, value of this one will be 1. इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1. So value of this question will be 1. इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 1. तो इसका आंसर क्या आ गया? 1. समझ में आ रहा है? If you are not getting what I am trying to say, so write your in the comment section that we are not getting, then I will try to make it more easier for you. Okay? Next question. So the same property that we have to apply here, that we want to make its base same. आप इसका base क्या बनाना चाहते हैं? Same. So we all know that ABC domain is same in all the terms. So if we make
ABC is its base, then base will be same in all the terms. So the same property that we have to apply here, that its domain will be changed into base and its base will be changed into its domain. So the same property will apply here, that log root A base ABC plus log root B base ABC, and its reciprocal will be removed if we are applying this property. Yes or no? Okay. Plus 1 upon log root C ABC. Yes or no? Okay. Now देखो log x plus the same formula that we have to apply here, log x plus log y plus log z. Yes or no? So it formula apply here, and we can write log root A into root B into root C. Yes or no? And its base will be same, ABC. Okay. And we can also write in the form of log ABC. We are having three terms, root A, root B, root C. So we can write in this form root ABC. Yes or no? And we all aware about that square meaning of the square root is power 1 by 2. Power 1 by 2. So log ABC and its power 1 by 2. And we studied about a property of logarithm, that log A x raised to the power m. So it will be changed. The power will be in the front of the m log x base a. से सुनो, इसकी जो पावर है वो कहां जाएगी आपके पास आगे. सो 1 अपॉन 2 log ABC ABC, and the same property we are going to apply here, log A base A, and value of this one will be 1. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1. So 1 by 2 into 1, and 1 by 2 into 1 will answer will be 1 by 2. So इसका आंसर क्या आ गया 1 by 2. Yes or no? Okay. In the third question we have another twist, that we have ABC ABC ABC, but we have another term +1. So अब आपको इस +1 का क्या करना है क्या नहीं करना, just you have to think about it. So the very first thing is that we have base A. अगर आप इस 1 को ऐसा भी लिख सकते हो क्या, से सुनो, और ऐसा ही क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज वी हैव द बेस A here. आपके पास बेस क्या है A. So we can write it that the 1 can be written in the form of log A base A equals to 1. Yes or no? Okay. So we can write it log BC base A plus, and 1 can be written log A base A plus. Now 1 upon the second term log AC base B plus. Now on the place of 1 we have to write log B base B, because here the base is B. यहां पर आपके पास बेस क्या है B है. So log B base B equals to 1. आप 1 की जगह log B base B लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं. So now log B base B plus, in the next 1 upon log C AB plus. Now we have the base C. तो अब यहां पर आप क्या लिखोगे, देखो बेस A था तब आपने log A base A लिखा, बेस B था तो आपने क्या लिखा log B base B, and now we have the base C. So we will write log C base C. Yes or no? Log C base C. Now the property will apply here, that is log x plus log y, log x plus log y, and it will be changed into log x into y, and base remains same. और इनका बेस क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्या रहेगा, सेम. तो आप यहां पे देख सकते हैं log x प्लस log y. Yes or no? और ये प्रॉपर्टी आप यहां पे अप्लाई कर दीजिए. तो 1 अपॉन log and its base will be a x into y. So BC को अगर आप a से मल्टीप्लाई करोगे, BC को a से मल्टीप्लाई करोगे, we will get ABC in the second term plus. The same property will apply here, 1 upon log B. AC को अगर आप B से मल्टीप्लाई करोगे, then what will be get ABC. In the third, 1 upon log C ABC. Yes or no? The same property of base change property will apply here, that
we are having its base a now, but we want to make its base same in all the terms. So we are applying here base change property, and the base change property is here. So we have to apply these properties here, that its base will be now log a b c plus log abc, sorry, b abc plus log CABC. And now we will apply a formula log x plus log y plus log z. And log x plus log y plus log z will be log x into y into z. And base will be same. So log A into B into C, and base will be same, ABC. And A into B into C will be ABC. So log ABC. Here log A base A, value of this one will be 1. So here log ABC base ABC. So value of this one will also 1. So our answer is 1. तो आपका आंसर क्या आ गया? 1. In the next question, we have to find out the value of log AB base B. अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप एक बार कमेंट कर देना. आई विल ट्राई टू मेक इट मोर इजी. मैं इसको कोशिश करूंगा कि और भी इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना. डोंट बी टू डिप्रेस नाउ. आपको है ना परेशान होने की जरूरत नहीं है. नहीं समझ में आ रहा, सो यू कैन कमेंट that we are not getting what are you trying to saying, what are you trying to teach. So I will be there for you. मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा. So listen all of you. In the next question we have to find out the value of log AB base B. And what we have given? We have given that log AB base A equals to x. So we have to find out the value of this one. Okay, we are trying. So देखो अपन ट्राई करते हैं. And the we all know that अगर आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ है log x into y, मैं इस फॉर्मूले को रिवर्स लिख रहा हूं. देखो आपको पता है कि नहीं पता, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या क्या log x बेस a प्लस log y बेस a. yes or no? अगर आपके पास ऐसा कुछ है तो देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना, log x प्लस log y इक्वल्स टू log x into y. तो आपने अब तक ये वाला फॉर्मूला ऐसे यूज किया, बट वी आर यूजिंग नाउ इट्स रिवर्स. अपन इसका रिवर्स यूज करना चाहते हैं. रिवर्स ही क्यों यूज करना चाहते हैं ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा. देखते हैं कैसे. सो लिसन ऑल ऑफ यू. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log a बेस a प्लस log b बेस a इक्वल्स टू x. yes or no? yes. so what is the value of log a बेस a? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? so इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1. so 1 प्लस log b बेस a equals to x. yes or no? yes. okay, now we have to transposing 1, so it will be changed into minus 1. so we have log b base a equals to x minus 1. yes or no? now come to the next. We have to find out the value of this one. yes or no? so the same property, the same reverse formula we have to apply here, and we can write log ab base b in the form of log a base b plus log b base b. yes or no? and we have to find out the value of this one. so मैं देखो इसको सेम ऐसे लिख दूं log ab plus and the value of log b base b 1. okay, 1. now I need value of log a base b. मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? a base b की. but we have log b base a. अपने पास तो इसकी वैल्यू है, लेकिन अगर मैं इसका बेस चेंज कर दूं, क्या चेंज कर दूं? बेस. तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी देखना. मैं इसका बेस चेंज कर रहा हूं, है ना. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन log a base b इक्वल्स टू x माइनस 1. yes or no? अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? अपॉन 1. अगर आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो x माइनस 1 ही आएगा. आएगा कि नहीं आएगा? ओके, नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लाई. अब आप क्या कर दीजिए? इंटरचेंज कर दीजिए इन दोनों टर्म्स को. क्या कर दीजिए? इंटरचेंज. सो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? अब ये किस में था? डिवाइड में. इट विल बी चेंज इनटू मल्टीप्लाई. सो log a बेस b. तो आपके पास देखो log a बेस b की वैल्यू आई कि नहीं आई? एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ log a बेस b. अब आप इसकी वैल्यू जो है वो यहां पे अप्लाई कर दीजिए.
करेंगे कि नहीं करेंगे? सो देखो ये रहा आपके पास log a बेस b और इस log a बेस b की वैल्यू आपके पास क्या है 1 अपॉन x माइनस 1। सो आप यहां पर लिख दीजिए इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 और इस 1 को मैं 1 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख देता हूं। नाउ इट्स एलसीएम विल बी x माइनस 1। आप x माइनस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे 1 और जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करो तो 1 आया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 देन वी विल गेट x माइनस 1 और जो भी आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो ऊपर क्या है 1 सो x माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 now minus into plus cancel out what we have now x upon x minus 1 yes or no and this is the value of this one and it can also return in the form of log x plus log y so क्या लिख सकते हो आप log x plus log y को log x into y and base will be same so this is the value of log ab base b and we have to find out the value of this one yes or no now question number 5 so look question number 5 is we have log x base 5 into log x base k equals to 1 and we have to find out the value of x x की वैल्यू निकालनी है okay so as you know that we have already discussed about these type of questions in the last classes so now you can solve this one but I want to do it for the x. Listen, देखो आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो लोग ये जो k वाला पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट से होने बोले सर आपको कैसे पता लगा है ना एक्सपीरियंस मैटर्स लिसन सो इफ we all know that log a base b it can be written in the form of we are applying base change property कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं base change property so listen log a base 10 upon log b base 10 से सुनो आप चाहो तो वापस इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो जो 10 है वो हट जाएगा और अभी आपके पास नीचे क्या आ रहा है b तो इट मींस इसका बेस क्या हो जाएगा b और जो ऊपर आ रहा है उसका क्या हो जाएगा डोमेन क्या हो जाएगा डोमेन सो द सेम प्रॉपर्टी दैट वी हैव टू अप्लाई हियर अप्लाई कर दो इसका और इसका जो बेस है ना वो चेंज कर लो और रिमेंबर वन थिंग जो बेस इसका ले रहे हो वो इसका लेना है ठीक है आप चाहे इसका कुछ भी लो 10 लो और कुछ भी ले लो लेकिन जो इसका ले रहे हो वो इसका लेना है ठीक है देखो log k base 10 upon log 5 base 10 yes or no into log x base 10 log k base 10 equals to yes or no we have applied base change property here कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है base change now log k base 10 k base 10 is cancel out and the remaining terms that we have is now कौन सी टर्म बच गई आपके पास ऊपर तो क्या बच गया log x तो बचेगा log x base 10 upon log 5 base 10 equals to 1 अब आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी थी किसकी x की है ना सो अब आपके पास ये जो पोर्शन है ये जो टर्म्स हैं आप हटा दो अब आपके पास क्या 10 आ रहा है आप इस वाले को फॉर्मूले को वापस ऐसे अप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते तो ये जो बेस है मैं इसको हटाना चाहता हूं मैं इसको नहीं लेना चाहता ठीक है अब मैं इस 10 को हटा रहा हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला या जो टर्म है वो क्या बचेगी लोग जो इसका डोमेन था अब जो चेंज करें उसका क्या बन जाएगा बेस सो 5 x इक्वल्स टू 1 बचेगा कि नहीं बचेगा बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x मुझे तो ये log नहीं चाहिए मुझे तो क्या चाहिए x की वैल्यू सो एंटी लॉग क्या ले लो एंटी लॉग जब आप एंटी लॉग लोगे तो आपके पास जो बेस था ये RHS वाली जो टर्म है उसकी पावर ले ले वो पावर बना लेगा उसको क्या बना लेगा पावर एंड द लेफ्ट हैंड साइड टर्म विल बी x सो आपके पास क्या जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 1 और 5 की पावर 1 क्या होता है 5 सो द वैल्यू ऑफ x इज 5 तो x की वैल्यू क्या है हाँ 5 x की वैल्यू 5 है नेक्स्ट the next question now we have to very careful in all these questions are a little bit difficult from the previous questions so we have to be very careful कैसे देखते हैं एक बार सोल्व करते हैं ना
So listen all of you. Same thing that we done in the first question. आपको यहाँ पे भी वैसे ही करना है. आपको क्या चेंज करना है, इसका बेस चेंज करना है. बोले कैसे पता लगा? देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है के, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है के. इट विल बी कैंसिल आउट इफ वी विल चेंज इट्स बेस by using base change property, the same written in the front of you. So listen, apply this property all of you. So आप इसका बेस चेंज कर रहे हो ना, तो आप बेस चेंज टू टाइप से कर सकते हो. या तो उसका रेसिप्रोकल करके जो डोमेन था उसको बेस बना दो, या फिर ऐसे. तो मैं ये वाली अप्लाई कर रहा हूँ, log k बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10. मैंने इनका बेस क्या ले लिया, 10 ले लिया है ना, अपनी मर्जी से, इनटू log x बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10. से सुनो, इनटू log x बेस 10 अपॉन log k बेस 10 इक्वल्स टू, ऐसा कुछ मेरे पास आ गया. एंड log k बेस 10 log k बेस 10 विल बी कैंसिल आउट. एंड द रिमेनिंग टर्म्स दैट वी हैव, देखो log 10 log x बेस 10 आपके पास कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स. log 2 बेस 10 log 2 बेस 10. तो देखो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड. बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी. सेम ऐसे ही तो आप इसको क्या लिख सकते हो, log x बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10, और इसका क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर. क्योंकि ऊपर भी 2 टर्म्स थी नीचे भी 2 टर्म्स थी, तो मैंने इसका होल स्क्वायर लिख लिया, इक्वल्स टू 1. बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. सो वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट. आपको क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, है ना. बोथ साइड में आप क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो. इधर से स्क्वायर रूट लोगे तो 2 पावर हट जाएगी. सो रिमेनिंग टर्म विल बी log x बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 इक्वल्स टू, जब आप स्क्वायर रूट लेते हो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपके पास 2 टर्म्स आएंगी. फर्स्ट वन पॉजिटिव एंड सेकंड वन नेगेटिव, या फिर फर्स्ट वन नेगेटिव सेकंड वन पॉजिटिव. आपके पास 2 टर्म्स आएंगी, है ना. तो आप यहाँ पर जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो आप इसको क्या लिखोगे, प्लस माइनस 1. से सुनो, इट मींस आपके पास इसकी जो वैल्यू है ना, वो 2 वैल्यूज पॉसिबल है. वो देखते हैं सच में पॉसिबल कितनी है, लेकिन अभी तो आपके पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस 1. से सुनो, तो एक बार तो मैं क्या ले लूंगा, प्लस, और एक बार क्या ले लूंगा, माइनस. सो आई विल टेक बोथ वैल्यूज. सो log x बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 इक्वल्स टू, यहां पर मैंने ले लिया प्लस 1, ओके, और यहां पर मैं ले रहा हूं माइनस. सो log x बेस 10 अपॉन log 2 बेस 10 इक्वल्स टू माइनस 1. कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो. सो लिसन ऑल ऑफ यू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है. और ऐसे नहीं लिखना चाहो, सो आपको पता है आप इसका बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, अब आप इसका बेस हटा लो अपनी तरफ से, तो ये जो क्या बन जाएगा आपके पास, log जो इसका डोमेन था वो इसका क्या बन जाएगा, बेस, और ऊपर वाला x इक्वल्स टू 1. ऐसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा. आपने इसका जो बेस चेंज किया था उसको बेस चेंज प्रॉपर्टी वाले को फॉर्मूले को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया. क्या कर दिया, रिवर्स. नाउ अब आप क्या ले लो, इसका एंटीलॉग. एंटीलॉग लोगे तो ये जो 2 है इसका बेस है, इसकी पावर क्या जाएगी, 1, और इधर क्या बचेगा आपके पास, x. सो x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू द पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2. सो आपके अपने x की वैल्यू क्या आ गई, तो आपके x की वैल्यू क्या है, 2. क्या है, 2. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर देखो आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई डाउट है, नहीं है. सो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, किया आपने. सो log x बेस 10 इक्वल्स टू माइनस log 2 बेस 10. से सुनो, क्योंकि आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, बट ये माइनस का था तो मैंने माइनस लगा दिया. अब आप इस टर्म का इधर ट्रांसपोजिंग कर दो और इधर लेके आ जाओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, log x. देखो आप चाहो तो छोड़ो एक बार, है ना, ऐसे लिख लेते हैं, log x बेस 10 प्लस log 2 बेस 10, और इधर आपके पास क्या बच जाएगा, 0. कुछ नहीं है, मीन्स क्या है आपके पास, 0. अब फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, क्या फॉर्मूला है, log x प्लस log y. log x प्लस log y फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर, log x प्लस log y. और log x प्लस log y क्या होता है, ना log x इंटू वाई, log x इंटू वाई. और जो बेस यहाँ पर था वही बेस यहाँ पर रहेगा, बेस सेम रहेगा. तो देखो मैं यहाँ पे इससे यहाँ से आगे यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है. सो देखो log
x इंटू टू और इसका बेस था वो सेम रहेगा इक्वल्स टू 0। अब आप यहां पर भी क्या ले लीजिए, एंटी लॉग ले लीजिए। एंटी लॉग लेंगे तो 10 की पावर क्या जाएगी 0। आपके पास इधर क्या बचेगा, x into 2 equals to 10 raised to the power 0. In the previous class we discussed that if a number have power 0 except 0 then its value will be 1. 0 के अलावा किसी की भी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। सो x into 2 equals to 1। और यहां से आपको तो किसकी वैल्यू निकालनी थी x की, तो इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 1/2, 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, है ना। इसका मीन्स आपके पास कितने वैल्यूज आई, 2 वैल्यूज। द फर्स्ट वन इज 2 एंड द सेकंड वन इज 1/2। कोई डाउट है, नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज log x plus 5 base e plus log x minus 5 base e equals to log 11 base। अब बताना ये log e वाला जो बेस है ये log का कौन सा टाइप है। इन द फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस दैट logarithm डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। अपन ने 4 पार्ट्स के बारे में डिसाइड किया था। सो जिसके बेस में log e आ रहा है, बेस e आ रहा है, उस टाइप को कौन सा पार्ट है वो logarithm का, बताना मुझे, है ना, कमेंट सेक्शन में। लिसन, so we have to apply the formula log x plus log y, log x plus log y equals to log x into y। तो ये फॉर्मूला आपको यहां पे अप्लाई करना है बिकॉज वी हैव द सेम बेस इन बोथ टर्म्स। सो आप इसको क्या लिख सकते हो, log e x plus 5 into x minus 5 equals to log 11 base e। से सुनो, अब आप देख रहे होंगे log x plus 5 x into x minus 5 a plus b into a minus b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। में लिख देता हूं, है ना, a plus b into a minus b equals to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। होता है कि नहीं होता। सो द सेम फॉर्मूला वी अप्लाई हियर दैट x स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इक्वल्स टू log 11 बेस ई। और इधर भी बेस क्या है। अब आप देखो, आप ऐसे मत करना कि log है ना वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट नहीं बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाय कंपैरिजन। जब आप कंपैरिजन करोगे तो देखो इधर आपके पास क्या आ रहा है log e, इधर भी आपके पास क्या आ रहा है log e। तो इसे कैंसिल आउट नहीं, इसे बोलेंगे कंपैरिजन कि log e से जो है वो log e क्या हो गया कैंसिल आउट। इसका मतलब अगर ये वाला इक्वल है, ये वाला इसके क्या है इक्वल, तो ये वाला भी इसके क्या आएगा इक्वल आएगा। क्या आएगा इक्वल। अगर आपके पास log e इक्वल आ रहा है तो इट्स डोमेन विल बी ऑल्सो इक्वल। इसका डोमेन भी है वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आप इसे कैंसिल आउट मत करना, आप क्या लिखोगे बाय कंपैरिजन। क्या लिखोगे बाय कंपैरिजन, कि अपन ने कंपेयर किया है। क्या किया है कंपेयर की, इधर log e है इधर भी log e है तो ये तो सेम हो गया। ऊपर वाले को सेम बनाते हैं, है ना, नीचे का सेम है ऊपर को सेम बनाओ तो बना देते हो। x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 11। से सो नो, ये माइनस 25 इधर जाएगा ट्रांसपोजिंग, सो x स्क्वायर इक्वल्स टू 11 प्लस 25। सो x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 36। बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। नाउ वी आर गेटिंग x स्क्वायर, आपके पास x स्क्वायर आ रहा है और वैल्यू किसकी निकालनी है x की। सो वी विल डू वन थिंग, आप इसका क्या ले लोगे स्क्वायर रूट। क्या ले लोगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट लोगे तो इसका स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा आपके पास x इक्वल्स टू, एंड 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 6। एंड बट इन दिस क्वेश्चन वी डिसाइडेड दैट if we are taking square root then we will get two numbers, first one positive and the second one negative, so plus minus 6। से सुनो आ गया। तो आप या तो x की वैल्यू क्या ले सकते हो 6 या फिर x की वैल्यू क्या ले सकते हो -6। बट अब मैं आता हूं पॉइंट पर कि इसकी वैल्यू पॉसिबल कौन सी है। मुझे एक बात बताना, y इक्वल्स टू log ax। से सुनो, अपन ऐसे कुछ लिखा था, अपन ने बोला था ये इसका डोमेन है, ये इसकी रेंज है और ये इसका क्या है बेस। से सुनो, बोला था कि नहीं बोला था। और अपन ने बोला था कि x की वैल्यू है वो हमेशा से क्या होगी ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू हमेशा से क्या होगी ग्रेटर देन 0। तो जब आप x की वैल्यू प्लस का 6 लेते हो, ये वाला ले रहे हो है ना, तो रखो यहाँ पर
6 प्लस 5 क्या हो जाएगा 11, 11 ओके डन। 6 माइनस 5 1 डन, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा कि ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, आ रही है। बट जब आप -6 लेते हो, क्या लेते हो -6, तो देखो -6 प्लस 5, -6 प्लस 5 अगर ऐसा कुछ लेते हो तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। और अपन ने डिसाइड किया था कि इसकी वैल्यू हमेशा से क्या रहनी चाहिए ग्रेटर देन 0, जो आपके पास डोमेन है उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन क्या आनी चाहिए 0। तो आप x की वैल्यू -6 कंसीडर नहीं करोगे, रीजन कि अगर आप ये लेते हो तो x क्या नहीं आ रहा ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहा है ना। इट मींस x की वैल्यू कौन सी हो जाएगी प्लस का 6 और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8 को 2 log x plus 1 base e minus log x square minus 1 base c equals to log 3 base c and we have to find out the value of a, समझ गए ओके x। सो लिसन, अब आप देखो यहां पर अपने पास कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा कि अगर ये 2 आ रहा है, लेकिन अगर मान लो ये 2 अपने पास नहीं आता तो मैं एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता log x minus log y इक्वल्स टू log x अपॉन y, से सुनो। तो इट मींस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ये 2 हटा दूं, लेकिन मैं 2 हटाऊंगा कैसे। सो 2 ऐसे हटाएंगे, देखो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है log a x रेज टू द पावर m, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। और आपने बोला है कि ये प्रॉपर्टी कहा जाती है आगे m log x बेस a, से सुनो है ना। सो आपके पास जो ये अभी m है, आपके पास ये वाली टर्म है और आप इसको इसमें चेंज करना है कि मींस जो आपके पास m आगे आ रहा है उसको आप किसके ऊपर चढ़ा दो, सॉरी किसके ऊपर लगा दो x के ऊपर, किसके ऊपर x के ऊपर। तो x आपका ये है तो आप इसको चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो log x प्लस 1 का स्क्वायर ई, से सुनो जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो सेम आपके पास ऐसा वापस आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ओके। माइनस log x स्क्वायर माइनस 1 बेस इक्वल्स टू log 3 बेस, से सुनो अब आपको एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है log x माइनस log y इक्वल्स टू log x अपॉन y और बेस विल बी सेम, जो बेस था वही आपका बेस रहेगा। तो यहां पर आप प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, तो देखो log a है ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये आपके पास इधर क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ऐसा है कैसा और log 3 बेस, से सुनो हो गया। अब आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास इधर एक फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो a अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा देता हूं, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, से सुनो। तो आप इसको a प्लस बी इंटू और a माइनस बी के फॉर्म में लिख दीजिए। सो log e x प्लस 1 का, इसको देखो 2 पावर है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी और 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 log 3 बेस e, से सुनो। अब आप ध्यान से देखोगे ये कैसे आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस ए बी, a क्या है x तो x प्लस 1 और a माइनस बी x माइनस 1। अब यहां से x प्लस 1 से x प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल आउट एंड द रिमेनिंग टर्म दैट वी हैव इज log x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 एंड इट्स बेस इज e इक्वल्स log 3। फिर से बोले सर log e से log e कैंसिल आउट कर दो, नहीं आप क्या बोलोगे बाय कंपैरिजन कि इधर जो log e है वो ही इधर log e है, मतलब कि ये वाला अगर इसके इक्वल है तो ये जो इसका डोमेन है वो भी इसके क्या होगा इक्वल, तो आप लिखोगे बाय कंपैरिजन, बाय कंपैरिजन कि आपने क्या किया कंपैरिजन कि अगर ये log वाला इक्वल है तो इनका डोमेन भी क्या आएगा इक्वल आएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, तो बोलो इधर से इसका डोमेन क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और इधर से इसका डोमेन क्या है 3 है ना। तो मैं इसको 3 को लिख देता हूं 3 अपॉन 1। अब आप क्या कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 3 इंटू एक्स 3x, 3 वन जा 3 वंस जा 3 वंस आर माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स इंटू 1 एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1
है ना, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, है ना, x। तो आप इसको इधर लेके आ जाइए और आप उसको उधर लेके जाइए, इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिंग। सो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 3, 3x माइनस एक्स 2x, 2x इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4/2, 4/2, 2s आर 4, तो आपके पास x की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 2, और ये इसका क्या है आंसर। अब आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर वी आर नॉट गेटिंग, और हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आई विल ट्राई टू सोल्व एंड मेक देम मोर इजी फॉर यू, है ना। तो आप पहले तो इस क्लास को देखो और समझने की कोशिश करो, और इन क्वेश्चंस को एक बार आप खुद भी निकालने की कोशिश करना, है ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पर कमेंट कर दो, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनसे भी सब्सक्राइब करवा दो। थैंक यू, हैव ए लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय।